बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग इंटरफेस। हमारी वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाडा। मेरा नाम मोहसिन अली है और मैं एमएस फोर्थ सेमेस्टर से हूँ। मैं आज इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग इंटरफेस पे जो है ना वो बात करूँगा। सबसे पहले देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या है? हेरिस्टिक एवेल्युएशन है, वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग है, रिस्पॉन्स टू हेरिस्टिक एवेल्युएशन की बेस पर जो है ना वो इसकी एवेल्युएशन है थर्ड पार्टी से, मतलब कि किसी और स्टूडेंट से। उसके बाद कुछ पॉइंट्स एक्सेप्टेड है, नॉट एक्सेप्टेड है, और उसके बाद सेल्फ क्रिटिसाइज है। हेरिस्टिक एवेल्युएशन। हेरिस्टिक एवेल्युएशन में पहला पॉइंट है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। यूजिंग स्पेसिफिक आइकॉन्स फॉर ईच टॉपिक टू यूजर रिकॉग्नाइज विद ease. Adding drop-down components for user for course selecting and grade purpose. This is more convenient compared to scrolling down. Furthermore, it is placed on top of the screen so that user are able to see it anywhere on the screen. अब हमारी वेबसाइट में क्या है? Some links are not active such as search, conference, LinkedIn, Twitter, etc. Having severity level 3, it is recommended to activate these links for convenience of users. This will make its rating better and will create positive impact on new users. Match between system and real world. Interaction with the user is a key point in product success. To make interaction easier between users and product, try using the components that are familiar to them. We can make that done by matching the design system with the real world. हमारी वेबसाइट में क्या है? वेबसाइट यूज रियल वर्ड्स icon for systems such as human image for login tab and lock image for password tab. This creates a good impression on new users. User control and freedom allows user to see previous and following questions on the top navigation bar. Users are able to paste and resume the exercise anytime. Technically, users data are automatically stored from system perspective, so it is able to call back anytime. In online form, a lot of necessary options are missing, such as update, delete, quit, create. It is recommended to add these options in online form submission for better user experience. Consistency and standard. Consistency is not only for colors and button style, but it is also for overall experience. Don't let don't let the user be confused by adding a different kind of experiences on different task flow. If we are choosing pop-up as a solution to a problem, then you use the same solution on all the similar situations. Hyperlinks are always highlighted by underlining or making add or changing color of text, but here hyperlinks on are not highlighted. Error prevention. Users are humans, human tends to do mistakes. So we should always keep an eye to avoid these possible mistakes by giving appropriate suggestions and notifications when needed. Suggestions and notifications are necessary for filling usernames and password tab. This website do not give any suggestions or notifications for password, which will create a negative impact on rating of website. So recommendation for this to provide suggestions and notifications. Recognize rather than recall. Try to minimize the use of users memory. Suggest them the option that they might need it, or remind them to complete a certain task
that needs to be done soon. Don't let the user think too much or recall her memory to complete tasks. The website lock location sign lacks location sign with its address in modern age. Location has become prime factor for locating anything anywhere in world. A location sign must be added to improve user experience, flexibility, and efficiency of use. This system show how to handle this kind of situations. Here to duplicate an element, a novice user can go to edit and click duplicate, but here there is a shortcut for the expert. They would press command D and duplicate things quickly. We can see a lot more example in our daily life. Search bar is search bar in a website create easiness for new user to access the desired content. For this website, search bar is not active, so this should be activated. Aesthetic and minimalistic design. Google.com is a perfect example of aesthetic and minimalistic design. Also have a look at other search engines to see the difference. A label before a picture or description describes the given story, but in this website, the label is missing, which must be added. Help users recognize, diagnose, and recover from errors. Here in this example, the moment he typed the full username, the system shows that here there is no such username. Now she can recheck the username, and if still the error exists, they can use the recover link. Using that link, he can recover or reset username. Broken links. Broken links on the website do not work. Home screen stay on even after clicking the broken links. It should be fixed to be show error message. Help and documentation. Here in this example, when we typing password, system give him suggestions, help for adding valid password. A good point for new users. A good website shows suggestions and validity for a better password, but website lacks these features. Password suggestions and validity help in documentation. Website redesigning based on heuristic evaluation. ये होम पेज है हमारी वेबसाइट का, इसको जो है रीडिज़ाइन किया गया है ऑन दी बेस ऑफ heuristic evaluation. लाइक जिस तरह हमने बार बार जिक्र किया था कि जो है कुछ लिंक्स ब्रोकन हैं, लाइक जर्नल कॉन्फ्रेंस, और मेनली हम जिसकी बात की थी सर्च इंजन, सर्च बार का जो है ना ये टैब ये एक्टिव नहीं है, और मैंने इसको जो है एक्टिव किया है. हम देख सकते हैं कि इस पर क्लिक करने से जो है वो हम गूगल सर्च बार पर चले जाते हैं. एज पर कंटेंट यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो अपने कंटेंट के हिसाब से इसको रीडिज़ाइन करके इसको एक्टिव कर सकते हैं. और इसके बाद होम का पेज ऐड किया, अबाउट अस है, एडमिशन है, फैसिलिटीज़ हैं, एकेडमिक है, डायरेक्टरेट्स है, डाउनलोड है, ये तमाम टैब्स इधर ऐड किए हैं. ये नेक्स्ट ये भी होम पेज का हिस्सा है. जिस तरह हमने एक और पॉइंट का जिक्र किया था, लेबल मिसिंग है, यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि हमने जो है ना वाइस चांसलर मैसेज ये लेबल भी ऐड किया है.
जो कि हमने हेरिस्टिक इवैल्यूएशन में मिस्टेक नोट की थी। उसके बाद एक मिस्टेक कॉमनली हमने जो यूज़ की थी वो लिंक्स अंडरलाइन किया था, वो भी अंडरलाइन कर दिए, और इसके साथ लोकेशन का जो साइन है उसको भी ऐड किया और उसको एक्टिव भी किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम वन बाय वन हम टैब्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी होम। होम टैब पर क्लिक करने से हम होम टैब पर ही रहेंगे। उसके बाद है अबाउट अस। अबाउट अस पर क्लिक करने से ये उसके सब मेन्यूज ओपन हो जाते हैं। अबाउट यूनिवर्सिटी है, वाइस चांसलर्स ऑफिस है, बायोग्राफी ऑफ ऑफिसर्स है, स्टेटस, विजन एंड फिलॉसफी। अबाउट अस पर क्लिक करेंगे, ये अबाउट यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री है और यूनिवर्सिटी का एड्रेस वगैरह लोकेशन है इसमें। वाइस चांसलर्स ऑफिस, इस पर क्लिक करने से जो है वो इसके मज़ीद 3 सब मेन्यूज ओपन हो जाते हैं। ग्रीटिंग्स है, प्रोफाइल है, पास्ट वाइस चांसलर्स है। ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स पर क्लिक करने से जो पेज ओपन होगा उसमें ग्रीटिंग्स और वाइस चांसलर की जो है वो प्रोफाइल होगी। ये दोनों पॉइंट्स इधर क्लियर हो जाएंगे इस एक पेज में। और इसके बाद नेक्स्ट है पास्ट वाइस चांसलर्स। पास्ट वाइस चांसलर्स में जो है हम ब्रीफली जो पास्ट वाइस चांसलर्स थे वो उनकी प्रोफाइल्स, उनके ड्यूरेशन के हवाले से जो है ना इस पेज में हम डिस्कस कर सकते हैं और उनकी खिदमात को सराहा जा सकता है इस पेज में। नेक्स्ट है बायोग्राफी ऑफ ऑफिसर्स। बायोग्राफी ऑफ ऑफिसर्स में है रजिस्ट्रार है, रेजिडेंट ऑडिटर है, रेजिडेंट ऑफिसर्स है, डायरेक्टर रिसर्च है। ये मेन ऑफिसर्स हैं जिनकी बायोग्राफी जो है ना वो ब्रीफली एक्सप्लेन की गई है। इन सब को जो है एक ही पेज पर जो है वो मैनेज किया गया है। जिस तरह रजिस्ट्रार पर क्लिक करने से रजिस्ट्रार के हवाले से आ जाएगा, और साथ ही रेजिडेंट ऑडिटर है, मतलब कि किसी भी एक लिंक पर क्लिक करने से ये तमाम जो है ना एक ही पेज पर वन बाय वन ओपन हो जाएंगे कि तमाम ऑफिसर्स की बायोग्राफी जो है ना वो एक पेज पर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेटस। स्टेटस में रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी। रैंकिंग यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्या है, रैंकिंग क्या है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है एज पर होल वर्ल्ड, वर्ल्ड के हवाले से रैंकिंग क्या है, और नेशनल नेशनल रैंकिंग क्या है, दोनों को एक्सप्लेन किया जा सकता है और ब्रीफली अचीवमेंट्स वगैरह इधर दी जा सकती हैं। उसके बाद विजन एंड फिलॉसफी। विजन एंड फिलॉसफी में विजन एंड गोल्स सब पॉइंट्स हैं, कोर वैल्यूज हैं और प्राउड टाइम। इस पर क्लिक करने से विजन एंड गोल में सम टेक्स्ट है, कोर वैल्यूज में सम है और प्राउड टाइम में सम टेक्स्ट है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं एडमिशन। एडमिशन के टैब पर क्लिक करने से एडमिशन गाइड है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स, मेरिट लिस्ट, हाउ टू अप्लाई। एडमिशन गाइड, एडमिशन गाइड में क्या है कि इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, फीस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में ये इंट्रोडक्शन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, फीस स्ट्रक्चर वगैरह सेम उसी तरह इसमें भी। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स का टैब को चेंज नहीं किया, ये सिर्फ एकेडमिक के टैब से रिमूव करके इधर मूव कर दिया गया है एडमिशन में। इसकी रीज़न यहाँ पे ये है कि जब कोई एडमिशन के लिए अप्लाई करता है तो एडमिशन वाले टैब पर क्लिक करके वो डिपार्टमेंट्स देख सकता है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, मैं किस डिपार्टमेंट में जो है वो अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ये यूज़र की आसानी के लिए किया गया कि वो एकेडमिक में जाके डिपार्टमेंट्स को देखता रहे। इससे बेहतर है कि जब वो एडमिशन पर क्लिक करता है तो साथ में उसे जो है ना वो डिपार्टमेंट्स वगैरह भी शो हो जाए ताकि वो सिलेक्ट करने में आसानी हो उसके लिए। नेक्स्ट मेरिट लिस्ट भी इधर ही है, इसमें नो चेंज। हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई के दो जो है ना वो सब टैब्स बना दिए हैं, हाउ टू अप्लाई और अप्लाई ऑनलाइन। हाउ टू अप्लाई में क्या है, जब हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो इसमें वो तरीका आ जाएगा कि किस तरह अप्लाई करना है, इसके हदायत
जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं या इसमें जो वीडियोस वगैरह ऐड की गई है वही आ जाएगा जिसको हमने चेंज नहीं किया। लेकिन यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का टैब जो है वो मैंने न्यू ऐड किया है कि इस पर क्लिक करने से डायरेक्टली जो है ना वो ऑनलाइन वाले पेज पर रजिस्ट्रेशन के पेज पर चला जाए। अप्लाई ऑनलाइन एडमिशन फॉर 2021 चेंज इनटू अप्लाई ऑनलाइन। जो पहले टैब बना हुआ था अप्लाई ऑनलाइन एडमिशन फॉर 2021 उसको मैंने चेंज कर दिया अप्लाई ऑनलाइन में, एक जर्नल कर दिया। वो फिक्स था कि 2021 के लिए, लेकिन मैंने फिक्स कर दिया इसको। ये टैब यहाँ तक थे। नेक्स्ट है हमारे पास फैकल्टीज। फैकल्टीज के टैब में नो चेंजिंग है, इसके टैब को किसी भी तरह से चेंज नहीं किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है अकेडमिक। अकेडमिक इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ में यहाँ पे एजुकेशन न्यूज़ के हवाले से है कि कौन कौन सी न्यूज़ हैं, मतलब है कि लेटेस्ट जो भी न्यूज़ है, कोई इवेंट है, कोई इसके अलावा कोई और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है रिसर्च के हवाले से हैं, वो तमाम इसमें आ जाएंगी। एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन को भी चेंज नहीं किया गया, सिर्फ एग्जामिनेशन के टैब को रिमूव करके उसको एकेडमी का सब जो है ना टैब बना दिया गया है। उसके बाद फैकल्टी रिसोर्सेज में नो चेंजिंग। एकेडमिक कैलेंडर भी नो चेंज। और रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को भी चेंज नहीं किया गया, सिर्फ ये किया कि ये पहले एडमिशन टैब में था, अब इसको उधर से रिमूव करके एकेडमिक का सब टैब जो है वो बना दिया गया। नेक्स्ट डायरेक्टरेट्स। डायरेक्टरेट्स में पहले थे डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटर्नल लिंकेज, डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, डायरेक्टरेट ऑफ कैरियर काउंसलिंग। और इसके बाद जो है वो मैंने 3 डायरेक्टरेट्स को और ऐड किया कि जो होने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, उनको भी मेन वेबसाइट होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल है, ह्यूमन रिसोर्स है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। वन बाय वन सेम इनका पेज पे होगा कि ब्रीफली इंट्रोडक्शन होगा और उसके बाद ओवरव्यू है इसका। इसी तरह नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, उसके ये कैरियर काउंसलिंग के डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है। ये सब के लिए एक सेपरेट जो है ना वो पेजेस बनाए गए हैं ताकि इजी हो जाए समझने के लिए। एक लेमैन यूज़र है वो आसानी से समझ सके और इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ें न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसके हवाले से और जिस चीज़ पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ओवरव्यू में आ जाएगा। नेक्स्ट है डाउनलोड। डाउनलोड पर क्लिक करने से एक पेज, न्यू पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर क्या होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हो गए, पीडीएफ में फाइल्स होंगी, तो आकर यूज़र जो है वो डायरेक्टली उन्हें डाउनलोड कर सके, जिसमें एनओसी फॉर्म हो सकता है, चलान फॉर्म हो सकता है, फीस सबमिशन फॉर्म हो सकता है, और इसके अलावा जो है माइग्रेशन फॉर्म हो सकता है, और भी जो नेसेसरी फॉर्म्स हैं वो इस तरह ऐड हो सकते हैं। उसके बाद जो है ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया है एक्सेप्टेड का। एक्सेप्टेड में एवेल्यूएशन के बाद जो मेरी वेबसाइट की जो रीडिज़ाइनिंग थी इसकी एवेल्यूएशन की थी मोहसिन रज़ाक ने, और उसने जो है ना वो 1-2 पॉइंट हाईलाइट किया था जिसमें था कि टाइटल शुड बी प्रॉपर। यहाँ पे टाइटल हम देख सकते हैं कि प्रॉपर नहीं था, मतलब कि सोशल लिंक्स और इम्पोर्टेंस लिंक्स ये रिप्लेस हो गए थे यहाँ पर, ये मतलब के चेंज होने थे। उसके अलावा ये जो लिंक्स इधर ऐड किए गए हैं डाउनलोड में, ये डाउनलोड में नहीं होने चाहिए। मैंने ये दोनों पॉइंट्स जो एक्सेप्ट किए हैं और इन्हें करेक्ट कर दिया। इसके अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो एप्लीकेबल होता, नॉट एप्लीकेटेड, नॉट एक्सेप्टेड में। उसके बाद सेल्फ क्रिटिसाइज। यूजर एडमिशन, यूनिवर्सिटी एडमिशंस आर क्लोज, द ऑनलाइन एडमिशन portal is also closed, so I could not work on online admission portal like registration of new user, password, and suggestions and notifications। और इसके अलावा था एंडू रीडू और अपडेट डिलीट
जब यूज़र फॉर्म को फिल कर रहा है उसके हवाले से जो मैंने हयूरिस्टिक इवैल्यूएशन में वेबसाइट निकाली थी, मिस्टेक्स निकाली थी, उनको जो है ना वो मैं ठीक नहीं कर सका। उसकी रीज़न ये है कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन क्लोज़ हो गए हैं और उसका जो ऑनलाइन अप्लाई वाला पोर्टल था वो बंद हो गया। अगर वो ओपन होता तो हम वहाँ पे जो मैंने मिस्टेक्स निकाली हैं, लाइक जब एक न्यू यूज़र रजिस्टर्ड हो रहा तो वो पासवर्ड की वैलिडिटी या उसके लिए सजेशंस वगैरह जो है कंस्ट्रेंट्स, उनको हम जो है ना वो बेहतर कर सकते थे, मैनेज कर सकते थे। और इसके अलावा नेक्स्ट जो मैंने पॉइंट निकाला था एक, कि ये यूज़र अपने फॉर्म को सेव कर सके और उसके साथ अपडेट कर सके, डिलीट कर सके, यूज़र का फ्रीडम एंड कंट्रोल होना चाहिए। वो उसको जो है हम इम्प्रूव कर सकते थे फर्दर, लेकिन एडमिशन क्लोज़ होने की वजह से या पोर्टल बंद होने की वजह से वो नहीं कर सके। और इसके बाद जो है नेक्स्ट, कि मैं एक अच्छा एचटीएमएल वेब डिज़ाइनर नहीं हूँ। अदरवाइज़ जो है ना वो होम पेज का जो लेआउट है उसे मज़ीद बेहतर किया जा सकता था, जिस तरह के मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। होम पेज होम पेज पर जाने से ये हम देख सकते हैं कि इधर ये फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग है, फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, और इसके साथ ये मज़ीद और टैब्स हैं। ये बहुत मिक्सअप कर दिया गया है और इसको इतना मिक्सअप नहीं होना चाहिए था। इसके लिए आपको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट, ये जो था ये मेरी इवैल्यूएशन थी, और उसके बाद जो वेबसाइट की रीडिज़ाइनिंग थी, उसके एग्जिस्टिंग इंटरफेस को इम्प्रूवमेंट थी। और इसके अलावा जो है, अगर फिर भी कोई मिस्टेक या कोई मतलब अगर कमी कोताही रह गई हो, तो उसके लिए जो है वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, या मेरे जो टीचर हैं, ऑनरेबल टीचर डॉक्टर जावेद अंजम शेख साहब, उनसे जो है ना वो शेयर कर सकते हैं ताकि इसको इम्प्रूव किया जा सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।